नमस्कार, प्रसारण न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं मुख्य समाचार की ओर। लिमड़ी पुलिस ने अपने पुलिस स्टेशन के सीमा क्षेत्र में स्थित पावरी गांव में रात्रि के समय वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध प्रतीत होने वाली 2 बाइकों को पकड़कर 3 व्यक्तियों से पूछताछ करने के बाद तलाशी ली और देसी हाथ से बने 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, स्क्रू ड्राइवर, लोहे की छड़, मोटरसाइकिल के लॉक तोड़ने के लिए एलंकी आदि सहित 1,08,900 रुपए का माल जब्त किया और तीनों को गिरफ्तार कर निमड़ी पुलिस स्टेशन ले आई। तीनों से गहन पूछताछ करने पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। गहन पूछताछ में उन्होंने दाहोद जिले के लिमखेड़ा में घर फोड़ चोरी, चंडीगढ़, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में घरफोड़ चोरियां, वाहन चोरी और फायरिंग की घटनाओं को अंजाम देने की चौंकाने वाली कबूलियत की थी। गत 3 मार्च को झालोद के लिमड़ी पुलिस स्टेशन के जिम्मेदार पीआई के राजपूत को मिली सूचना के आधार पर अपने स्टाफ के पुलिस कर्मियों की टीम को साथ लेकर पावड़ी गांव में नाकाबंदी कर दोनों तरफ से आने जाने वाले सभी छोटे बड़े वाहनों पर कड़ी नजर रखी और वाहन चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर आ रहे 3 युवकों को रोककर उनसे पूछताछ करने पर तीनों ने अपने नाम मोहम्मद शाहरुख मलिक, नासिर आरिफ सैयद और फरमान सलीम अहमद शेख, तीनों उत्तर प्रदेश के मूल निवासी और वर्तमान में निवासी दाहोद कसाब घांचीवाड़ा बताए। पुलिस को संदेह होने पर पुलिस ने उन तीनों की तलाशी ली और 2 देसी हाथ से बने तमंचे, 10 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन, लकड़ी के हैंडल वाला लोहे का बड़ा स्क्रू ड्राइवर, मोटरसाइकिल का लॉक तोड़ने की एलिंग की और अन्य सामान सहित 1,08,900 रुपए का माल जब्त कर लिया है। पुलिस ने तलाशी के दौरान पकड़े गए देसी हाथ से बने 2 तमंचे और जिंदा कारतूस उत्तर प्रदेश के इस मोहम्मद खलील अहमद ने दिए होने की बात सामने आने पर पुलिस ने उसे पकड़ने के भी चक्र गतिमान किए हैं। દાહોદ જિલ્લાના લીંબડી પોલીસ સ્ટેશન ખાતેથી એક બાઇક ચોરીની ઘટના બનેલી હતી। એ બાઇક ચોરીની ઘટનાના આધારે સીસીટીવી ફૂટેજ અને નેત્રમ જે છે એના ENPR ટેકનોલોજીથી લીંબડી પોલીસે ટ્રેક કરી રહી હતી। એ દરમિયાન પોલીસના ધ્યાનમાં આવ્યું કે એ બાઇક દાહોદ શહેરમાં આવે છે અને દાહોદ શહેરથી પાછું જવાની બાતમી પ્રાપ્ત થતાં મીરાખેડી આઉટપોસ્ટ વિસ્તારમાં પીઆઈ રાજપૂત અને એમની ટીમ એની વોચમાં હોય છે। એ દરમિયાન બાઇક આવે છે। બાઇકને ઊભું રખાવતા બાઇક ચાલક જે હતા શાહરૂન અને નાસિર નામના છે। આ બંને ઉત્તર પ્રદેશના મુઝફ્ફરનગર જિલ્લાના અને સામલી જિલ્લાના વતની છે। એમને ઊભું રાખી ચેક કરતા બાઇક ચોરીનું હોવાની કબૂલાત કરેલ અને એમની પાસેથી એક હાથ બનાવટની પિસ્ટલ અને રાઉન્ડ પ્રાપ્ત થયા। ત્યાંને ત્યાં એમને પૂછતા એમણે જણાવ્યું કે અમારા બીજા સાથીદારો પાછળ આવી રહ્યા છે। પાછળ આવી રહેલું ટીવીએસ જે વ્હાઇટ કલરનું હતું એ ટીવીએસને ઊભું રખાવતા એમાંથી ફરમાન અને જાવેદ હતા, જેમાંથી ફરમાન પકડાઈ ગયેલ છે। ફરમાન પાસેથી પણ એક પિસ્ટલ અને 6 રાઉન્ડ પ્રાપ્ત થયા। ત્યારબાદ આરોપીની સઘન પૂછપરછ કરતા તેઓએ કબૂલાત કરેલ કે મધ્યપ્રદેશના જાબુઆ જિલ્લા ખાતે તે લોકોએ ઘરફોડ ચોરી કરેલી। આ ટીવીએસ બાઇક જે છે એ મધ્યપ્રદેશમાંથી ચોરેલું। આ ઉપરાંત દાહોદ જિલ્લાના લીમખેડા ખાતે પણ ઘરફોડ ચોરી કરેલી અને આ લોકો ખૂબ રીઢા ગુનેગારો છે। જે જાવેદ નામનો આરોપી જે છે મુઝફ્ફરનગરનો, આ લોકો અને શાહરૂન જે પકડાયા છે, આ લોકો ચંદીગઢ, હરિયાણા, ઉત્તર પ્રદેશ આ તમામ વિસ્તારમાં ગુનાઓને અંજામ આપી ચૂક્યા છે। જાવેદ 5 વખત જેલમાં પણ જઈ આવ્યો છે અને ચંદીગઢમાં થતી ઘરફોડ ચોરીઓ, લૂંટ અને એક બહુ ગંભીર ઘટના કે એક સિનિયર સિટીઝનને 2 કલાક સુધી ચંદીગઢ ખાતે ઘરમાં રિવોલ્વરની અણીએ ગોંધી રાખી અને ખૂબ મોટી લૂંટ કરેલી હતી। આરોપીઓ અવારનવાર ફાયરિંગની પણ ઘટનાઓને અંજામ આપી ચૂકેલા। અહીંયા દાહોદ જિલ્લામાં એમનો આવવાનો હેતુ એવો હતો કે દાહોદમાં એક દુકાન આઈડેન્ટિફાઈ કરી હતી જેને લૂંટ કરવાના હતા અને ગોધરા ખાતે એક મકાન આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને એને લૂંટ કરવાના હતા। લૂંટ કરવા માટે જે વાહનો વાપરવાના હોય એ તમામ વાહનો ચોરી કરી અને વાપરવાના હતા, પરંતુ દાહોદ જિલ્લામાં બાઇકની ચોરી થતાં જ આ લોકો પકડાઈ ગયેલા અને આમ લૂંટ જેવા ગંભીર ગુનાને અંજામ આપે એ પહેલા આ ગેંગનો પર્દાફાશ થયેલ છે અને એમની પાસેથી આશરે 1 લાખ રૂપિયાની રકમનો મુદ્દામાલ જપ્ત થયેલ છે।
दाहोद तालुका के राणापुर बुजुर्ग गांव के मेहंदी फलिया प्राज स्कूल की विवादास्पद घटना सामने आई है, जिसमें सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में स्कूल की मासूम छात्राओं को शिक्षकों की बूट धोते और छात्राओं को शौचालय की सफाई करते हुए देखा गया है। इस घटना ने स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। वीडियो वायरल होने पर इस घटना की जांच शुरू की गई है, ऐसा पता चला है। दाहोद जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है और सरकारी प्राय स्कूलों में अधिकतम गरीब आदिवासियों के बच्चे ही पढ़ते हैं। ऐसे में स्कूल में छात्राओं से जूते साफ करवाने और शौचालय साफ करवाने के वायरल वीडियो ने कई प्रश्न खड़े कर दिए। आदिवासी गरीब छात्रों के पढ़ने वाले सरकारी स्कूल में ऐसी घटना चिंताजनक है। स्कूल की प्राचार्य भरत परमार से टेलीफोनिक संपर्क करने पर उन्होंने स्वीकार किया कि वायरल वीडियो उनके ही स्कूल का है। प्राचार्य ने बताया कि वीडियो लगभग 1 साल पुराना लगता है। मैंने किसी भी छात्र को बूट धोने या शौचालय साफ करने के लिए निर्देश नहीं दिया है। किसके द्वारा यह कृत्य करवाया गया, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वहीं इस मामले में सीआरसी मुकेश नीनामा ने बताया कि यह वीडियो दिनांक 19 जनवरी का है। ग्रामीणों द्वारा बार बार अनुरोध करने पर भी इस मुद्दे पर कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। छात्राओं से शिक्षकों की बूट धुलवाने और शौचालय साफ करवाने के वीडियो वायरल होने के बाद राज्य सरकार की कन्या केलवणी की बातें खोखली साबित हुई हैं। એ મને એવું લાગે છે કે એકાદ વર્ષ જૂનો છે અને આ વિડીયોમાં જે દેખાડવામાં આવ્યું છે એવી કોઈ સફાઈ કામગીરી કે કોઈ બૂટ ધોવાની કામગીરીની કોઈ સૂચના મેં બાળકને આપી જ નથી આજ સુધી અને આટલા વર્ષોમાં કોઈ પણ કામગીરી આવી ગેરકાનૂની કામગીરી કરવામાં આવી જ નથી. આ એકાદ વર્ષ જૂનો લાગે છે આ વિડીયો મને. આ વાત મને લગભગ આગળથી ખબર પડી હતી કે આવો વિડીયો વાયરલ કરવા માંગે છે કોઈ અને જાણકારી મળી હતી, પણ એકાદ વર્ષ જૂનો લાગે છે આ વિડીયો. એના અંદર જે દેખાડવામાં આવ્યું છે એ બધું તદ્દન ખોટું છે. જે આક્ષેપ કરવામાં આવે છે બધા તદ્દન ખોટા છે. મેં કોઈ આવી સૂચના બાળકોને આપી જ નથી કે આ કાર્ય કરો કે આ કાર્ય કરો, આવું કંઈ કીધું જ નથી. अहमदाबाद स्थित लाइट माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने ग्रामीण समुदायों के सर्वांगीण विकास और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता के लिए प्रतिबद्धता को और मजबूत बनाते हुए 4 मार्च 2025 को गुजरात के दाहोद जिले के झालोर के रामपुरा गांव में निशुल्क आंखों के जांच शिविर का आयोजन किया। यह शिविर प्राइमरी स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें गांव के निवासियों और स्कूल के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर के दौरान विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा आंखों की जांच की गई और आवश्यक सलाह दी गई, जिसके कारण ग्रामीणों ने समय पर अपनी आंखों के स्वास्थ्य के बारे में जागरूक और उचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। इसके अलावा लाइट माइक्रो फाइनेंस की टीम द्वारा स्कूल के बच्चों को शिक्षा सामग्री का वितरण किया गया, जो उनके उज्जवल भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। माइक्रो फाइनेंस के ओम विभाग के हर्षद और उनकी टीम विशेष रूप से उपस्थित रहे। स्कूल की मुख्य अध्यापिका सरिता नीमामा ने सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया और इस महान पहल के लिए लाइट माइक्रो फाइनेंस का आभार माना।